Good evening to everybody. In the last lecture, we discussed on outline of different types of classification scheme which are invented by different types of classifiers. At the beginning, we saw that DDC, which is invented by the Dewey Decimal Classification, and after that we watch Cutter's expansive classifications in which kind of the general classes are given. Actually, there are 10 classes are given in expansive classification: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. At the same way, in DDC also given 10 classes, but their mix notation will be used there. But if we are look in expansive classification, there are only alphabets are used to show main classes, and with the help of this, Cutter try to explain the universe subject or universe knowledge. The expansive classification follows evolutionary order throughout. So he explained himself in expansive classification, revolutionary order is mentioned throughout the scheme, and in natural history it puts the parts of each subject in order which theory assigned to their appearance in creation. Its science proceeds from atomic to moleculars and then to the molar, from numbers to space, from matter and force, and then to matters and life. Its botany goes up from cryptograms to phonograms. The book art follow the history of the book from its production through its distribution to its storage and in libraries, and end with their description, that is bibliography. Now economic too has a natural order. Basically economic is a sociological subject, but it is put in expansive classification as in natural order. Population, production, distribution, property, consumptions. This arrangement has practical value since it bring together books which one may wish to use at the same time. And Cutter's classification is dead now, but its influence has been considerable, especially on Library of Congress classification. Basically, if we are go through the expansive classification of Cutter's classification, then we will come to know this classification is dead now. It is not used in nobody library, but on the base of this classification, library congress classification will be prepared there. Okay, तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कटर का एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है अभी यूज नहीं होता. इट इज़ डेट, इट इज़ डिक्लेयर एज अ डेट, उसको डेट डिक्लेयर घोषित किया गया है, लेकिन उसके बेस पर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन तैयार किया गया है जो अभी लाइव है, जो अभी यूज हो रहा है. इट वाज द फर्स्ट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन some definite and objectively expressed principle, and definitely the first classification which wanted library classification to be more than just self arrangement. Okay, तो ये ऐसा पहला क्लासिफिकेशन स्कीम था कि जिसमें
ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली एक्सप्रेस किए गए थे, और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन टू बी मोर दैन जस्ट सेल्फ अरेंजमेंट। और जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इस पर तैयार किया गया वो एक मॉडिफिकेशन इसका हम कह सकते हैं। सो in this way we can discuss over the expansive classifications, and after that subject classification, which is invented by J.D. Brown. James Dove Brown, in short it is called, he is called J.D. Brown, was star librarian famous for introducing open access in libraries of England. His subject classification was first published in 1906 and revised posthumously in 1917 and 1939. तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस क्लासिफिकेशन बारे में जान सकते हैं। J.D. ब्राउन का जो क्लासिफिकेशन है उसे सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कहा गया है, और उनका पूरा नेम जेम्स डव ब्राउन, born in 1862 and died in 1914. Okay, he was the star librarian in England libraries. Subject classification was first published in 1906. Revised edition was published in first 1917 and 1939. So you remember all these years. Okay, years आपको ध्यान में रखने होंगे. Okay, its main class order, its interesting arrangement of subject was different from that DDC and expansive classification. So if we are compare subjective classification and subject classification to the DDC and expansive classification, then there is a lot of difference in the class order and arrangement of subject. तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के जो क्लास अरेंजमेंट था, क्लास ऑर्डर थी, और क्लास जिसे हम सब्जेक्ट अरेंजमेंट बोलते हैं, उनमें टोटल डिफरेंस हमें यहाँ पर दिखाई देता है. ही क्लेम हिज मेन क्लास ऑर्डर वाज इन साइंटिफिक प्रोग्रेशंस. तो उन्होंने साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेन क्लास की रचना की. तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू जिसे साइंस का प्रभाव इसमें दिखाई देता है. He was of the opinion that order of creation in nature is matter, force and life. Okay, तो तीन एलिमेंट्स उसने प्रोमिनेंटली उस पर फोकस किया, जिसे हम मैटर, फोर्स और लाइफ कहते हैं. ओके, सो माइंड रिकॉर्ड according to the sequence of his main classes is matter and force. A generally a BD physical science or life, EF biological science, GH ethnological medicine, iconic biology, mind, JK philosophy and religion, social and political science, record, ML language and literatures, own history and geography, bibliography. Okay, so Brown is a famous for his experimental one place theory. तो ब्राउन अपनी थ्योरी के बारे में परिचित थे. उन्होंने एक थ्योरी प्रस्तुत की थी. उस थ्योरी का नाम है वन प्लेस थ्योरी, विच इज कोलोकेट सब्जेक्ट एंड ऑल its aspect at one place rather than to scatter them by discipline as done in the DDC and other system. Okay, so which is collocate subject and all its aspect at one place rather than to scatter them by discipline as done by in the DDC. तो सब सब्जेक्ट के रिलेटेड एक थ्योरी वन प्लेस में आ जाए. जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग स्कैटर हो जाते हैं तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है. ओके, जैसे डीडीसी में हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि साइंस प्योर सब्जेक्ट के सभी जो मेन
टॉपिक से, सब टॉपिक से और उसके भी सब टॉपिक से एक जगह पे नहीं है, वो स्कैटर हमें दिखाई देते हैं डीडीसी में। लेकिन जेडी ब्राउन ने इस पर थोड़ा अलग एक्सपेरिमेंट करके देखा और उसने सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में ऑल सब्जेक्ट रिलेटेड मेन टॉपिक्स, सब टॉपिक्स और उसके भी सब टॉपिक्स और रिलेवेंट टॉपिक्स हम कहते हैं, वो एक जगह पे कैसे आ सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने प्रयास किया अपने सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन में। तो ये मेन डिफरेंस हमें डीडीसी क्लासिफिकेशन और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में दिखाई देता है। तो इसीलिए उन्होंने वन प्लेस थ्योरी यानी कि क्या, जो वन सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड और रिलेवेंट जो भी टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट है, वो एक जगह पे कैसे आ सकते हैं, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। So with concrete subject as the basis, its abstract subject aspect are placed around it. तो सब्जेक्ट के जो कॉन्क्रीट सब्जेक्ट है उसके टॉपिक्स है और जो अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स है वो भी एक जगह पे लाने का प्रयास वन प्लेस थ्योरी के माध्यम से जेडी ब्राउन ने यहाँ पर किया है। सो लेट्स टेक डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट कॉपर, मेटलर्जी, mineralogy, chemistry, conductivity and economics. The subject classification place all these aspects together with copper. That is why it is called the one place theory. जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉपर सब्जेक्ट कॉपर से रिलेटेड इससे भी आते हैं मेटलर्जी, मिनरलॉजी, केमिस्ट्री, कंडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक्स। तो इस सभी कॉपर से रिलेटेड जो मेन टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, वन प्लेस थ्योरी के अंतर्गत एक जगह पे उन्होंने लाके रखे। तो इसलिए उनको वन एक्ट थ्योरी कहा जाता है। ओके, सो द कॉन्क्रीट सब्जेक्ट कॉपर, एक कॉन्क्रीट यहाँ पर कॉपर सब्जेक्ट है, इस प्लेस इन साइंस विच it belongs most near, in this case it is mineralogy. Okay, similarly apple is placed under botany, practice follow theory, chemical technology is placed under chemistry, but this one place theory more often produce very funny and embarrassing result. Body exercise and body funerals come at one place in this system through the broader sequence of main classes is in perfect evolutionary order, but one place theory failed to give logical sequence to the subject. ये हमें सुनने में, पढ़ने में और लिखने में अच्छा लगता है कि वन प्लेस थ्योरी के अंतर्गत जब हम मेन सब्जेक्ट कॉन्क्रीट सब्जेक्ट के अंतर्गत सब मेंस टॉपिक, सब टॉपिक्स और उसके भी सब टॉपिक्स सीक्वेंसली एक साथ आते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये भी जो उसका वीक पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है वन प्लेस थ्योरी का, वन प्लेस थ्योरी मोर ऑफन प्रोड्यूस वेरी फनी एंड एम्ब्रेसिंग रिजल्ट। ओके, in case mineralogy, similarly apple plays an under botany, practice follow theory, chemical technology is placed under the chemistry, but this one theory more often produce very funny and embarrassing result. Body exercise and body funerals came at one place in this system. तो यहाँ पर थोड़ा confusion और create होता है, जैसे कि body exercise और body funerals एक साथ आ जाते हैं। ओके, तो बॉडी एक्सरसाइज हम कंसिडर एज ए पॉजिटिव सब्जेक्ट एंड बॉडी फ्यूनरल इज कंसिडर एज ए नेगेटिव concept. So when they come together, then it will create the funny and confusions and it will create also negativity. Okay,
So come at one place in this system through the broader sequence of main class is perfect evolutionary order. But one place theory failed to give logical sequence to subject. लेकिन वन प्लेस थ्योरी लॉजिकल सीक्वेंस देने में फेल होती है ऐसा कहा जाता है, ऐसा क्रिटिक्स का मानना है। तो जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं और उसकी बात करते हैं तो उसमें क्या प्लस पॉइंट है, क्या ड्रॉबैक है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, दोनों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो एक तरीके से वन प्लेस थ्योरी जो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में दी गई है वो हमें एक तरह से अच्छी लगती है, लेकिन दूसरी ओर से जब हम देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इसमें फनी और एम्ब्रासिंग रिजल्ट क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि बॉडी एक्सरसाइज के आगे बॉडी फ्यूनरल आ जाता है, तो इसमें लॉजिकल सीक्वेंस नहीं दिखाई देता। जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो वहाँ पर बॉडी फ्यूनरल क्यों आता है, बॉडी फ्यूनरल नहीं आना चाहिए, ऐसी कुछ लोगों का मानना है। तो ऐसे एक एग्जांपल के द्वारा यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे फनी और एम्ब्रासिंग मीन्स इट विल सरप्राइज टू यू बाय रीडिंग सच काइंड ऑफ टॉपिक। तो ये इसका एक वीक पॉइंट यहाँ पर माना गया है कि जो लॉजिकल सीक्वेंस देने में फेल होता है। ओके, सो नेवरथलेस इट वाज बोल्ड अटेम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट विथ ऑल एन अल्टरनेटिव टू डिवीजन बाय डिसिप्लिन। लेकिन कई जगहों पे कई लाइब्रेरियों में इसका यूज हुआ है, एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसके बेस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक्सपेरिमेंट फेल्ड बट द लेसन फ्रॉम ब्राउन सर्वाइव। लेकिन उन्होंने जो आइडियाज़ प्रस्तावित की वो भी आज सर्वाइव है, जीवंत है, हम उसे पढ़ते हैं। ओके, और फिर अगला जो क्लासिफिकेशन है कोलन क्लासिफिकेशन, ये तो सबको परिचित है। ये किसने इन्वेंट किया? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इन्वेंट किया है। कोलन क्लासिफिकेशन फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश इन 1933, 1933 में ये पब्लिश हुई। एस आर रंगनाथन, द पीरियड ऑफ हिज लाइफ is given there. It is thoroughly faceted and theory based classification. Ranganathan was very particular about the order of main classes. Okay, तो मेन क्लासेस के बारे में वे परिचित थे। And facet in class numbers, for him the order is essence of classification. He formulated some postulate and principle for orders of classes in array and chain and facet in the facet formula. Contrary to expectation, order of main classes in the CC is not Vedic. Through a weak influence of this system can be seen. His broader main class order is। तो कोलन क्लासिफिकेशन में किस तरह से मेन क्लासेस की रचना की गई है। कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन ऑर्डर मेन क्लासेस इन द सीसी इज नॉट वैदिक। थ्रू अ वीक इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सिस्टम कैन बी सीन। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल as given in figures. Ranganathan was one of the considered view that science have evolved first, followed by humanity. Social science are the last to come into being. Keeping in view social and academic trends, Ranganathan devoted half of the total notational space to main classes of science and technology. The other side of the triangle has been divided between humanities and social science. Science it to aim are in the order of their increasing concreteness. B mathematics is the most abstract science. Okay. C physics is more concrete than B mathematics.
less concrete than the engineering, so on. Aim useful at having craft and miscellaneous technology such as textile engineering, rope making, carpentry, smithy, games, and sport is the most concrete of the science. तो कोलन क्लासिफिकेशन ए साइंटिफिक क्लासिफिकेशन माना जाता है डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा, और यूनिक क्लासिफिकेशन भी हम इसे कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी मिक्स नोटेशन का यूज किया गया है, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स यूज और नंबर्स भी यहाँ पर यूज किए गए हैं। For example, B mathematical has many application, and C physics, which in turn technology follow, E chemistry, and J agriculture follow, I botany. In this way, theory and its application have been brought together. So, in colon classification, what happened? Theory plus applications means practical use brought together. थ्योरी जब हम फॉर्मुलेट करते हैं तो उसका यूज भी होना चाहिए। क्लासिफिकेशन स्कीम में केवल थ्योरी हमें इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसका प्रैक्टिकल जब तक नहीं होता तो थ्योरी का वैल्यू जितना इतना नहीं बढ़ता जितना जब तक उसका यूज नहीं होता। ओके, सो बट दिस ऑर्डर आल्सो सेपरेट एग्रीकल्चर फ्रॉम एनिमल्स हस्बेंडरी विच आर यूजुअली प्रैक्टिस together. The humanities have been arranged in the order of their increasing richness of contents. Social science TZ have been arranged in the order of their increasing artificiality. It is at the crossroad of science and humanity. Okay, two of these bent and mind of orthodox religious beliefs, Ranganathan was of the point opinion mystic and spiritual knowledge is the source of all kinds of knowledge. Okay, तो यहाँ पर रंगनाथन के द्वारा जो कोलन क्लासिफिकेशन की रचना की गई है स्कीम की, तो इस क्लासिफिकेशन ने साइंस और ह्यूमैनिटी को क्रॉस किया है, और उसके आगे जो माइंड है उसका ऑर्थोडॉक्स और रिलीजियस की ओर झुका है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। उनकी जो कोलन क्लासिफिकेशन उसमें मिस्टिक, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज, ऐसा उनका मानना है। इट इज सम एंड समरी ऑफ द एंटायर एम्पिरिकल नॉलेज। Spirituality in India is regarded as highest knowledge of God and self. So Vidya Pratishtha hence its highest positions. Okay, तो उनके अकॉर्डिंग उनका जो कल है वो आध्यात्मिक की ओर है, और उनके अकॉर्डिंग उनका ऐसा मानना है कि spiritual knowledge is source of all kinds of the knowledge, so that is why spiritual knowledge he kept at the peak of universe knowledge. तो सर्वोच्च शिखर पर उन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज को रखा है। इट इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ सोर्स एनी ऑल काइंड्स ऑफ द नॉलेज। तो इस तरह से कोलन क्लासिफिकेशन में सेंट्रल आइडिया क्या है, उसकी रचना कैसे की, उसमें मेन क्लासेस कौन से हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया आउटलाइन के द्वारा। और फिर इन एडिशन हिज वेल थ्रू आउट मेन क्लास ऑर्डर द सीक्वेंस पीमेस्ट कैटेगरी इज इन ऑर्डर डिक्रीजिंग कॉन्क्रीटनेस while their connecting symbols are given ordinal value in way that order of subject the self is from abstract to concrete general specific। तो उनकी जो थ्रू आउट कोलन क्लासिफिकेशन में इमेज कैटेगरी हमें दिखाई देती है, और उसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्जन। राउंड एंड लेवल ऑफ फैसेट इन फैसेट फॉर्मूला आर अरेंज बाय द pictures
rescue principle of facet sequence such wall picture principle, cow calf principle. Ranganathan went beyond the systematic order of main classes by uniquely arranging his documents on the shelf in single unbroken but recurring pedagogical order in the entire library, termed as the Apopa pattern by his method books within a mind are arranged in preliminary core texts and advanced texts suitable for self-learning subject. He achieved this by dividing his common forms divisions. Okay, तो इस तरह से कॉलम क्लासिफिकेशन के बारे में हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया। और आगे का जो क्लासिफिकेशन है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस स्टार्टेड इन 1898 में इसकी शुरुआत हुई। शेड्यूल कम आउट इन 1902। Class Z library science was chosen the first schedule to be developed. So Z class is the first schedule to be developed. From beginning, individual class were developed by different groups of specialists under the direction of J.C.M. Hanson and his assistant Charles Martel. There are 21 classes and 40 plus schedules used by many US and foreign libraries. Cutter expansive classification was the main guide to develop classes. So, who is the base? Which is the base? Which classification is the base of Library of Congress classification? Cutter's expansive classification. This question will be asked with each its resemble in board divisions. Okay, so each and every class is divided as in board. It is classification by discipline, but it is not universal, being based on literary warrant. Schedule were developed from its vast collection. Its main classes were developed into sub classes denoted by two digits and are in progressive order of general to specific, tailored to local needs of word-based library. The order of classes is even influenced by its building. Its success is true of pragmatism over ideological embellishment. तो इसमें जो क्लास दी गई, ए जनरल क्लास सोशल साइंस, बी फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, रिलीजन, सी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, एच एल सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, एम एन म्यूजिक फाइन आर्ट्स, एल पी लैंग्वेज लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्यू साइंस, आर मेडिसिन, एस एग्रीकल्चर, टी टेक्नोलॉजी, यू मिलिट्री साइंस, बी नेवी, जी बायोग्राफी एंड लाइब्रेरी साइंस। ओके, तो इस तरह से 10 मेन क्लासेस यहाँ 21 मेन क्लासेस यहाँ पर दिए गए हैं। तो 21 मेन क्लासेस किस तरह से डिवाइड किए गए इस क्लासिफिकेशन स्कीम में, वो यहाँ पर दिए है। देन बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, हेनरी एच ब्लिस जिसे बोलते हैं हम शॉर्ट में, स्पेंड मोस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन द स्टडी ऑफ द फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। In bibliographic classification, the order of main classes is based on what he calls scientific and educational consensus. Okay, consensus. He was of the view that there is an order main class that exists in nature, and it is nearer to the majority
consensus. The order is given by each. Okay. तो एच ई ब्लिस के द्वारा बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन की रचना की गई और उसमें जो साइंटिफिक एंड एजुकेशनल कॉन्सेंसस, जिसे हम कॉन्सेंसस बोलते हैं, तो उसके बेस पर, उसके आधार पर ये रचना की गई। और यहाँ पर जो है अलग अलग ऑर्डर्स मेन क्लासेस में हमें दिखाई देती है on the base of its natures. So let's see that what kind of the classes are given here. Main classes A considered as a philosophy, A mathematics, then B physics, C chemistry, D astronomy, E biology, H anthropology, I psychology, J education, K social science, L O history, P religion, Q social welfare, R political science, S law, T economics, U technology, V fine arts, WY language and literatures, J religions. Okay. So in addition, he also used the principle of collocations and subordination to bring together closely allied subject. For example, science and their applied aspect have been placed side by side. तो यहाँ पर अलग अलग जो प्रिंसिपल ऑफ कलोकेशन सबऑर्डिनेट ब्रिंग टुगेदर क्लोजली अलाइड सब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं. फॉर एग्जांपल साइंस एंड देयर अप्लाइड एस्पेक्ट हैव बीन प्लेस्ड साइड बाय साइड. जैसे कि साइंस और अप्लाइड साइंस के जो सब्जेक्ट है साइड बाय साइड रखे हैं. ये ऑल्सो ऑफर अल्टरनेटिव लोकेशन फॉर सम सब्जेक्ट. और यहाँ पर अल्टरनेटिव लोकेशन भी दिया गया है. For example, economic and history could either be placed with economic and general history, religion either P or Z, such alternative location. Okay. On the other hand, his theory of conscience has come under criticism. It is argued that there is no permanent order to main classes in nature. Therefore, it cannot be known और नो ऑर्डर इज एब्सोल्यूट. यहाँ पर जो ऑर्डर दी गई है वो एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन परमानेंट ऑर्डर यहाँ पर देने का प्रयास किया गया है एच ई ब्लिस द्वारा. मोरेओवर दिस ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम कल्चर टू कल्चर. और ये जो ऑर्डर है कल्चर टू कल्चर हमें different दिखाई देगी. From time to time new subject are formed and emergence of new main class changes the status of other classes. Bliss provision of alternative locations also goes against any absolute or permanent order of main classes in natures. Nevertheless, it is considered that the order of main classes in BC is logical and more stable, perhaps bit better than Viral system. Okay. तो आगे राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं. अनदर जनरल स्कीम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन इज Fremont A. Riders, that is called F.A. Riders, an American librarian famous for his advocacy microforms in libraries. Okay. तो उन्होंने माइक्रोफॉर्म्स के बारे में फेमस है. ही इज कॉल्ड अमेरिकन लाइब्रेरियन एंड is known for his advocacy of microforms in libraries. तो माइक्रोफॉर्म
का जो इन्वेंशन है लाइब्रेरी में उनके द्वारा हुआ है। In 1961, he self-published his international classification for arrangement of books on the shelf for general libraries. तो जनरल लाइब्रेरी में किस तरह से सेल्फ क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं उसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन की रचना की। एंड ही स्कीम अ वेरी ब्रॉड वन हैज 26 मेन क्लासेस डिनोटेड बाय रोमन कैपिटल्स। तो रोमन जो कैपिटल थे उनके द्वारा 26 मेन क्लासेस की रचना। ओके, तो क्लास यहाँ पर दिए है ई जनरल या बी फिलोसॉफी, सी आई हिस्ट्री जोग्राफी, जे एन सोशल साइंस, बी बिजनेस, ओ बिजनेस, पी मिलिट्री साइंस, क्यूएस फिजिकल साइंस, टीवी बायोलॉजी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, डब्ल्यू फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, एक जेड लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से उनके द्वारा रचना की गई है। Classes have been further divided alphabetically up to 3 letters. तो बेसिकली ये जो क्लासेस है अल्फ़ाबेटिकली लेटर के द्वारा डिवाइड की गई 3 लेटर्स में, thus producing a total of 26 multiply 26 multiply 26 means 70,576 अल्टीमेट क्लास नंबर्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। ओके, राइडर also announced that being broader the scheme will not be revised। तो जब राइडर ने स्कीम की घोषणा की तब उन्होंने खुद ये कहा कि ये ब्रॉडर स्कीम है, लेंदी, इट इज लेंदी स्कीम बिकॉज if we compare international classification scheme with other classification scheme like DDC, expensive, then Library of Congress subject classification, so it has more classes। तो अलग अलग जो क्लासिफिकेशन स्कीम हमने अभी देखी उसके बारे में चर्चा की, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्लासेस है, लेकिन ये दो जो स्कीम है यहाँ पर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन और ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, उसमें ज़्यादा मोर देन 20 क्लासेस हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये इसका मतलब ये लेंदी क्लासिफिकेशन स्कीम कंसिडर होती है। और इसका कभी रिवीजन नहीं हुआ, मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। इंडिड ब्रॉडर स्कीम लेस रिवीजन इज नीड्स। तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि ये लेंदी हो गई तो इसे थोड़ा ब्रॉड हो गई है तो इसे थोड़ा लेस करते हैं रिवीजन की बेस पर, रिवीजन करके मॉडिफिकेशन करके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ब्रॉडर नॉलेज ऑफ सिस्टम इज सेल्फ परपिचुइंग स्कीम विच रंगनाथन एस्पायर्ड बट नेवर अचीव्ड। रंगनाथन के द्वारा स्कीम का एस्पायर्ड हुई, तुलना हुई, अच्छी उन्होंने बताई, लेकिन उन्होंने कभी जो चाहिए अचीवमेंट वो अचीव नहीं की। रंगनाथन इन 1949 इट कैन बी डिस्क्राइब एज स्टिल बॉर्न सिस्टम। तो आज तक उसे हम बॉर्न सिस्टम करके देखते हैं, नेवर यूज एनीवेयर एंड इवन फॉरगॉटन बाय द टेक्स्ट बुक राइटर। यह इसका कभी कहाँ पर यूज नहीं हुआ, लेकिन उसे भुलाया भी नहीं गया, उसे याद रखते हैं टेक्स्ट बुक राइटर और जो राइटर एक्सपर्ट। सो इट डिड नॉट सिंक विथ टाइम्स बीइंग primitively enumerative scheme born amidst phased system and a broader one in times of turbulently growing knowledge needing
डेप्थ क्लासिफिकेशन। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्कीम जो एफ राइडर के द्वारा यहाँ पर दी गई, वो आज तक कहाँ पर यूज नहीं हुई, लेकिन उसे बुलाया भी नहीं गया, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। द ब्रॉडर अरेंजमेंट इज सोशल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज़। तो इस स्कीम में ज़्यादातर सोशल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटीज़ के बारे में ज़्यादा अरेंजमेंट दिखाई देती है। द ऑथर हु डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ मास्टर ऑफ नन डिड नॉट सीम टू हैव केयर अबाउट एनी ऑर्डर ऑफ क्लासेस। तो उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है, एडमिट किया है कि मास्टर ऑफ नन, तो इसीलिए उनकी जो क्लासेस है, उनकी जो स्कीम है और उनके द्वारा जो क्लासेस दिए गए हैं उनमें ऑर्डर हमें दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह से हम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन में बारे में बात कर सकते हैं। और आगे जो है बिब्लियोथिकल बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, दैट इज़ कॉल्ड बीबीके। ओके, इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है क्योंकि थोड़ा अलग वर्ड में ये दिया गया है इसका फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म भी आप याद रखना विथ स्पेलिंग। बीबीके also abbreviated as LBC was designed at and for the erstwhile Lenin State Library, Moscow। तो बीबीके की जो रचना है, बीबीके स्पेशली लेनिन स्टेट लाइब्रेरी जो मॉस्को में है उसके लिए की गई है। पब्लिश इन 30 वॉल्यूम्स बिटवीन 1960 to 1968। इट्स एब्रिजमेंट इन 6 वॉल्यूम, और उसका जो शॉर्ट संक्षिप्त रूप किया गया है 6 वॉल्यूम में 1970-75 में, एंड 1 वॉल्यूम इन 1976 are also available for medium and small library respectively. Version are also made out of 4 types documents such as printed books, electronic documents or OPACs. Its 21st main classes are denoted by 28 capital Cyrillic alphabets। तो यहाँ पर 28 कैपिटल्स बनाए गए हैं। सिंस 1977 ऑल वर्जन प्रोवाइड अल्टरनेटिव 1 to 9 डेसिमल नंबर्स। ओके, ब्रीफ आउटलाइन मेन क्लासेस लुक लाइक दिस। तो बीबीके की जो मेन क्लासेस है यहाँ पर दिए हैं सिक्वेंसली। जनरल, सेकंड साइंस, 3 टेक्नोलॉजी, 4 एग्रीकल्चर, public health, 6 social science, 7 cultures and education, 80 to 84 language, 85 art, 86 religions। So main tables are supplemented by 2 UDC like tables of special and common subdivisions. The system is hierarchical and faceted to some extent as a clear natural science and technology lead the least as would be expected from an atheist regime। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से बीबीके के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। These are followed by social science and humanity, technology, agriculture, medicine are sandwiched between natural, social science। Okay, so these are the bridge between science and
societal needs in between their further hierarchical subdivisions, an estimate total of 45,000 classes are arranged in succession of their pedagogical order. As said earlier, their first place in every class is given to मार्क्सिज्म लेनिन। तो इस थ्योरी का जो प्रभाव है इस क्लासिफिकेशन पर हमें दिखाई देता है, बिकॉज इट इज इन्वेंटेड इन मॉस्को इन रशिया एंड थ्योरी वाज Marxism and Leninism was major counterpart in Russia. So that's why on the basis of this theory or ideology, this scheme was invented. Broadly, it can be seen that the disciplines are arranged in the decreasing order of their social utility as pursued socialist country. Science are from basic to applied, abstract to concrete, whereas social science to move from quantity to quality. Fate of this system in capitalist Russia is not known. Through libraries always betray heavy interior to replace classification system once adopted. तो इस तरह से हम यहाँ पर बीबी की इस क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और फिर इसका है कि ब्रॉड सिस्टम ऑर्डरिंग, दैट इज कॉल्ड BSO, a general faceted classification scheme for information exchange and switching is unique, or system in this sense that it was not a design as conventional classification for use in libraries or classifying knowledge per sequence, commissioned by UNESCO in 1971. तो इस तरह से जनरल क्लासिफिकेशन स्कीम इसे कहते हैं। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और स्विचिंग को यूनिक बनाने के लिए ये सिस्टम तैयार की गई है, डिज़ाइन की गई है, और इसमें कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन यूज किया गया है फॉर क्लासिफाइंग नॉलेज। और ये जो क्लासिफिकेशन स्कीम है किसके द्वारा कमीशन की गई है? यूनेस्को द्वारा इन 1971 एज ए प्रूफ ऑफ क्लासिफिकेशन, अम्ब्रेला क्लासिफिकेशन। सो इंडेक्सिंग, लैंग्वेज लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, रिट्रीवल सिस्टम, इंफॉर्मेशन बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन इसमें ऐड किए गए हैं। द मेन एम वाज टू मेक देम नेचुरली म्यूचुअली compatible on very general level. As its another unique features, it is the first originally designed post 1945 classification harnessing the modern development in classification ushered by S.R. Ranganathan, later by the Classification Research Group and others. First version which is published in 1971. फर्स्ट वर्जन कब पब्लिश हुआ इसका? 1971 में। had only 4,000 classes elaborated, 6,800 in the third latest version। और फिर बाद में इसका एलेबोरेशन हुआ 1994 में, और उसमें क्लासेस बढ़ाई गई जो 4,000 से लेकर 6,800 हुए। इट इंक्लूड ट्रेडिशनल डिसिप्लिन, उसमें ट्रेडिशनल डिसिप्लिन था, मल्टी डिसिप्लिन एंड मिशंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट भी थे, विच कैन बी एक्सपांडेड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। जो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों का एक्सपांशन इसमें किया गया। सो नॉलेज इन BSO हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज क्लॉकवाइज क्लिनिक। जैसे क्लॉकवाइज साइक्लिक होता है उस तरह से इसमें नॉलेज का एक्सपांशन किया गया, प्रेजेंटेशन किया गया। स्ट्रक्चर स्टार्टिंग विद एप्लीकेशन सब्जेक्ट सच एज 1 फॉर लॉजिक, मैथमेटिक, रिसर्च मेथड एटसेट्रा। तो इस तरह से हम BSO की सेंट्रल आइडिया यहाँ पर आपको बता सकते हैं।
और ये जो क्लासेस है ये भी आप पढ़ सकते हैं, तो उसके द्वारा आपको जो सेंट्रल आइडिया है बेसिक की वो समझ में आएगी। कंपाउंड सब्जेक्ट कैन बी फॉर्म बाय facet synthesis with contesimal and milesimal notation introduced by a comma. The complex classes are formed with hyper information service religions, research religions। इस तरह से अलग अलग यहाँ पर क्लासेस दी गई है, अलग अलग सब्जेक्ट को यहाँ पर मेंशन करने का प्रयास इस क्लासिफिकेशन स्कीम के द्वारा किया गया है। Now this topic has been finished here. So after understanding the classification, library classification, canons of library classification and different types of scheme of classification, we are going to see the fourth topic from this unit, knowledge organization, in which we are going to learn cataloging, canons, principal, centralized and cooperative catalog, library catalog code, CC, ट्रिपल सी एंड AACR। ओके, तो जैसे हमने क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पर चर्चा की, ठीक उसी तरह से नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज, इसमें दो टॉपिक्स मेन होते हैं, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। ओके, तो इस यूनिट में हमें नॉलेज ऑर्गेनाइज के अंतर्गत ये दो मेन और ब्रॉड सब्जेक्ट पर हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। तो नॉलेज क्लासिफिकेशन में जैसे हमने देखा, क्लासिफिकेशन मीन्स व्हाट, देन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, then canons of library classification, then classification scheme, तो ये चार ब्रॉड टॉपिक हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया। तो सेम उसी तरह से हम यहाँ पर कैटलॉगिंग मीन्स व्हाट, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, canons of library classification, और क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग स्कीम। ओके, तो इस तरह से दो मेन टॉपिक होते हैं नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं, इसे हम नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं। तो उसके अंतर्गत हमारे लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में दो टॉपिक्स आते हैं मेन,
जिसे हम क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग कहते हैं। जिस तरह से हमने क्लासिफिकेशन यानी क्या, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, देन कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में यहाँ पर चर्चा की। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर कैटलॉगिंग मीन्स व्हाट, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग एंड कैटलॉगिंग स्कीम, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन का यूज बुक डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है, क्लासिफाइड करने के लिए होता है, यूनिवर्सल सब्जेक्ट क्लासिफाई करने के लिए होता है। और कैटलॉगिंग का उपयोग बुक किस तरह से क्लासिफाई हुई है वो फाइंड आउट करने के लिए होता है। ओके, so in the context of cataloging, normative principle are those rule, laws, canons and principles which govern preparation of cataloging code, various types of entries, choice of headings, rendering of heading, description and other related with cataloging of documents। तो इस तरह से कैनन का मतलब ही होता है कि लॉ, प्रिंसिपल, गाइडलाइन। जिस तरह से हमने क्लासिफिकेशन कैनन के बारे में चर्चा की, ठीक उसी तरह से अब हम कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें कौन सी चीज़ मेजर होती है, तो हाउ टू प्रिपेयर द कैटलॉग कोड्स by doing various type of entries, choice of headings, rendering heading, descriptions, another thing related with the cataloging documents। तो इसमें प्रमुखता जो बातें आती है, कैटलॉगिंग कैसे तैयार करते हैं, उसकी एंट्रीज कैसे की जाती है, हेडिंग की रचना हम कैसे करते हैं, चूज कैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, वगैरह वगैरह, इतनी सारी बातें इसमें। law, canons and principles is nothing but the normative principle। Okay, so S.R. Ranganathan has used three terms to denote normative principle: law, canons and principle। तो रंगनाथन के द्वारा 3 टर्म्स यहाँ पर यूज किए गए नॉर्मेटिव प्रिंसिपल बताने के लिए, लॉ, कैनन्स और प्रिंसिपल्स। ओके, तो इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। So law is the correct statement and is used in major disciplines such as law of life science, Newton's law, etc. Law tell us what we have do and what not do। Okay, normative principles। S.R. Ranganathan, लॉ, कैनन और एक वर्ड यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल। ओके, तो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल गाइडलाइन को दिखाने के लिए उनके द्वारा 3 शब्द इस्तेमाल किए गए, लॉ। ओके, तो लॉ का मतलब होता है उनके अकॉर्डिंग परफेक्ट रूल। ओके, जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते उसको परफेक्ट रूल कहा जाता है, लेकिन ये भी फ्लेक्सिबल होते हैं। लॉ टेल अस व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट नॉट टू डू।
क्या करना क्या नहीं करना, ओके। डूज और डोंट इसमें होते हैं। डोंट्स इसमें होते क्या करना नहीं चाहिए, ये हमें लॉ सिखाता है। और फिर कैनन्स मीन्स जनरल प्रिंसिपल स्टैंडर्ड बाय विच जजमेंट, जनरल प्रिंसिपल इसमें होते हैं। विच जजमेंट में बी फॉर्म्ड, रंगनाथन हैज यूज्ड टर्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिवीजन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द मेजर disciplines such as cataloging, classification, book selection. General principle होते हैं जिसे हम स्टैंडर्ड भी कहते हैं, ओके। और इसका उपयोग जो है रंगनाथन के द्वारा अलग अलग जगहों पे किया गया है, जैसे कि कैटलॉगिंग में, क्लासिफिकेशन में, बुक सिलेक्शन में। कैटलॉगिंग प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल और बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल। और Ranganathan has used these terms in the context of the second or later order of the major discipline, such as a principle of facet sequence in classification and principle of alphabetization in cataloging. तो इस तरह से कैनन को जनरल प्रिंसिपल कहा जाता है। और प्रिंसिपल इज द रूल रेगुलेटिंग प्रोसीजर method necessary to be observed in the pursuit or study of some art or science, okay। Principle is a rule regulating the procedure or method. Rules regulating procedures और मेथड इसे कहा जाता है। जनरली किसी कंसेप्ट को दिखाने के लिए, प्रोसीजर या मेथड को दिखाने के लिए बताए जाते हैं, ओके। तो रंगनाथन हैज़ यूज these terms in context of division, second and later order of the major disciplines such as the principle of facet sequence in classification and principle of alphabetizations in cataloging. तो यहाँ पर कैटलॉग यानी कि क्या, इसके बारे में डेफिनेशन दी गई। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स मीन्स व्हाट लॉ, कैनन्स एंड प्रिंसिपल। देखा जाए तो तीनों वर्ड एक जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़े स्लाइड चेंजेस इसमें हमें दिखाई देते हैं कि लॉ, प्रिंसिपल और कैनन्स कैसे कहते हैं। अलग अलग जगहों पे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा इसका यूज हुआ है। तो यहाँ पर डेफिनेशन हम so we try to make the definition of catalog and what is meant by the cataloging. The word catalog has been derived from the Greek phrase catalogus, okay. So catalogus is made by two words. Kata means by or according to logos, okay. So on the other hand has a different meaning like word, order or region, okay. So as such the term catalog literally meaning list of something arranged in some systematic order. So the simple meaning is given by the cataloging each that list of something arranged in something systematic order.
तो इस तरह से हम कैटलॉगिंग का मीनिंग जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया जाता है और सिस्टमैटिक तरीके से लिखा जाता है, उसे हम कैटलॉग और कैटलॉगिंग कहते हैं. So famous cataloging code. So which kind of the famous cataloging code is given here? Cataloging entries are prepared according to the certain rules. So as said earlier, the classification scheme are designed the rules on the base of some certain rules, and that is why we can use for arrangement, for making the different types of main classes and other entries or arrange the subject classifications. So that's why without certain rules, without certain canons, we can't prepare the classification scheme. At the same way, without certain rules, without canons, without principle, we can't cataloging. We can't prepare the catalog. So there are standard rules are given by different types of cataloger. Now on the base of these rules and regulation, on the base of this standard, we can prepare the different types of catalog. So when we look toward the classifications, at that time there are different types of classification scheme are given by different types of classifiers. At the same way, different types of cataloging schemes are given by different types of catalogers. So if we are compared to each others, their arrangement, their features, their pattern are totally different from to each others. Their function are also different from to each others. The classification scheme means what? By using this classification scheme, we can arrange the subject in the library, and it will help to divide the subject classification or subject universe subject, and with the help of this we can arrange the books or documents in the library with the help of or by using the classification scheme. But for what purpose we can use the cataloging scheme? By using the catalog and cataloging scheme, we can prepare the catalog, and with the help of this catalog we can find out the books on particular place on the shelf in the library. तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन स्कीम का उपयोग हमें क्या होता है और कैटलॉगिंग स्कीम का उपयोग हमें क्या होता है, इसके बारे में हमने यहाँ पर मेजर जो डिफरेंट है वो जानने का प्रयास किया है. तो क्लासिफिकेशन जो स्कीम है उसका उपयोग हमें डॉक्यूमेंट या बुक्स सेल्फ अरेंजमेंट करने के लिए होता है लाइब्रेरी में, और कैटलॉगिंग स्कीम का उपयोग हमें जो बुक क्लासिफाई किए हैं अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन स्कीम वो फाइंड आउट करने के लिए होता है. तो एक दूसरे को पूरक है क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग और उसके जो रूल्स है. तो यहाँ पर हम फेमस कैटलॉगिंग कोड के बारे में जानते हैं. So cataloging entries are prepared according to certain rules. On the base of rules or certain rules, without rules or standard principle, no cataloging scheme will be prepared there. These rules are included in cataloging codes. These codes are adopted by libraries to guide the catalogers in preparations of catalog cards entries. This help in ensuring uniformity in cataloging process. Names of such codes are given below for your reference. तो कुछ नेम्स यहाँ पर दिए गए हैं कि जो कैटलॉगिंग कोड जाने जाते हैं. So at the beginning in 19
सॉरी 1841 1841 में ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉगिंग रूल्स की रचना की गई। पहली कैटलॉगिंग स्कीम मानी जाती है, रूल्स माने जाते हैं। फिर उसके बाद 1852 जिवेट्स रूल्स माने जाते हैं। 1876 में कटर्स रूल्स। 1908 में एंग्लो अमेरिकन कोड जिसे हम AAC कहते हैं। 1934 में क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड जिसे हम CCC कहते हैं। 1948 वेटिकन रूल्स। 1949 ALA रूल्स। 1949 LC डिस्क्रिप्शन रूल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के। और फिर 1967 में एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स जिसे हम AACR1 कहते हैं। और फिर उसके बाद 1978 में एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स AACR2 कहते हैं। 1988 में एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स AACR2R। इस तरह से अलग अलग डिवीजन, अलग अलग रिवीजन में ये कैटलॉगिंग कोड्स तैयार किए गए बाय डिफरेंट कैटलॉगर्स, अलग अलग कैटलॉगर के द्वारा। ओके, तो इसके बारे में हम थोड़ी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ये जो सीक्वेंस है, क्रोनोलॉजी है कैटलॉगिंग के बारे में दी गई, जो हमने अभी पढ़ी, इसकी जो सीक्वेंसली अरेंजमेंट की गई है उसके हिसाब से हम उसकी हिस्ट्री यहाँ पर जान सकते हैं। तो द कैटलॉग ऑफ द प्रिंटेड बुक्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ एंटिक्वेरीज ऑफ लंदन 1816 were suppose the first two dictionary catalog। तो फर्स्ट प्रिंटेड बुक जो है कैटलॉग के संदर्भ में, जिसे हम सोसाइटी ऑफ एंटिक्वेरीज ऑफ लंदन कहते हैं, उसकी निर्मित 1816 में हुई। इसी फर्स्ट डिक्शनरी कहा जाता है कैटलॉग की। फिर उसके बाद 1841 ब्रिटिश म्यूजियम कोड की रचना की गई, जिसमें रूल्स फॉर कंपाइलिंग फॉर कैटलॉग ऑफ प्रिंटेड बुक्स मैस म्यूजिक तैयार किया गया। रिवाइज एडिशन 1936 में हुई, फिर 48 में, फिर 51 में। ओके, तो इस तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट वाज डन इन 1816, सेकंड अटेम्प्ट वाज डन 1841. Then 1852 Charles Dwight prepared code of cataloging with 39 rules. तो ये सेकंड अटेम्प्ट था और ये फर्स्ट अटेम्प्ट, इसे हम थर्ड अटेम्प्ट कह सकते हैं 39 रूल के साथ। और इन 1876 में कटर्स रूल्स डिक्शनरी कैटलॉग, उसमें 205 रूल्स दिए गए थे। फोर्थ अटेम्प्ट था। ओके, सीक्वेंसली हम इसका स्टडी कर सकते हैं। टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग हिस्ट्री का स्टडी करने के लिए हमें सीक्वेंस याद रखना होगा, और उसके जरिए हम कैटलॉगिंग की हिस्ट्री किस तरह से तैयार की गई, यानी तैयार हुई, इसका स्टडी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्रोनोलॉजी। देन इन 1934 डॉक्टर रंगनाथन पब्लिश क्लासिफाइड कैटलॉग।
and in 1964 fifth edition cataloging code was published. तो उसका रिवीजन 1964 में हुआ फिफ्थ एडिशन का, ये भी आपको पूछा जा सकता है। then 1886 प्रोफेसर के किट्सका publish cataloging code in German which was translated into English, published in 1890. 1908 एंग्लो अमेरिकन कोड, ये इम्पोर्टेंट माना जाता है, जॉइंटली कंपाइल्ड बाय अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एले द्वारा और एले द्वारा पब्लिश किया गया जॉइंटली, एंड दिस कैटलॉगिंग रूल वाज पब्लिश अमेरिकन एंड ब्रिटिश एडिशन। तो इसकी जो रचना है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एंग्लो अमेरिकन कोड जो 1908 में हुआ, फिर ए एंग्लो अमेरिकन रूल्स कब हुआ, 1927 में, एंग्लो अमेरिकन CR1 कब हुआ, ऐसा सीक्वेंस आप लगा सकते हैं। 1967 में, ओके, और फिर CR2 की निर्मित जो है कौन से साल में हुई, 1978 में, ओके। और फिर CR2R की निर्मित कब हुई, 1988 में, ओके। तो ये जो सीक्वेंस है एंग्लो अमेरिकन कोड, फिर उनकी जो रिवीजन है, ये मेन एडिशन है, और फिर ये सभी जो है उसकी रिवाइज एडिशन है। तो ये सभी आपको याद रखना है ताकि इस पर सवाल आने के बाद आप उसका जवाब दे सको। तो मैच द पेयर, इस पर सवाल आ सकता है। तो कौन सी एडिशन और रिवीजन किस साल में पब्लिश हुई, ये आपको याद रखना है, उसके नाम भी अलग अलग यहाँ पर दिए हैं, ओके। तो जनरली ये जो एंग्लो अमेरिकन कोड है, इसकी निर्मित में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, उनकी मदद से एक कोड की निर्मित हुई है, और वर्ल्ड वाइड कैटलॉगिंग कोड माना जाता है। सभी देशों ने इसका स्वीकार किया है और यूज भी किया है, और अभी भी इसका यूज हो रहा है, ओके, ऑफलाइन लाइब्रेरी में, ऑफलाइन कैटलॉगिंग में। तो बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं कैटलॉगिंग प्रोसेस में, चॉइस एंड रेंडरिंग हेडिंग, मेन हेडिंग, एडिट एंट्री वगैरह, रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन, एरिया सेक्शन एंट्रीज, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप स्टाइल, राइटिंग, पंचुएशन मार्क, कैपिटलाइजेशन, ये प्रिपरेशन एंट्रीज करनी पड़ती है, रिकॉर्डिंग कॉल नंबर्स, फिलिंग ऑफ कैटलॉगिंग कार्ड्स, और फिर प्रिपरेशन ऑफ गाइड एंड कार्ड्स, ओके, और मेंटेनेंस एंड अपडेशन। तो कार्ड जब हम तैयार करते हैं तो किस तरह से करते हैं, क्या क्या उसमें करना पड़ता है। अब कार्ड सिस्टम बंद हो चुकी है, किसी भी लाइब्रेरी में रेयरली इसका यूज़ हो रहा है, लेकिन एज ए सैम्पल और एक उदाहरण के तौर पे ये रखा गया है। हिस्टोरिकल लाइब्रेरी में किस तरह से, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में किस तरह से कैटलॉगिंग का यूज़ होता था, एक रीडिंग पर्पज़ के लिए, स्टडी पर्पज़ के लिए इसका यूज़ हो रहा है, और ये कई सारी लाइब्रेरी में हमें देखने को मिलता है, लेकिन रेयरली उसका यूज़ हो रहा है अभी।
अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो हर एक लाइब्रेरी में ऑनलाइन कैटलॉगिंग का यूज़ हो रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल लाइब्रेरी का भले ही यूज़ ना हो, लेकिन स्टडी के लिए उसे रखा जाता है। किस तरह से हमारी ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग कोड का यूज होता था। तो इसलिए कैटलॉगिंग कैसे तैयार की जाती है, कैटलॉगिंग कार्ड कैसे तैयार किए जाते हैं, उसकी मेन एंट्री सब एंट्री कैसे तैयार की जाती है, किस चीज़ का वहाँ पर यूज होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बट हियर वी विल स्टॉप हियर।